دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زاویار رات کو لیٹ گھر واپس آیا تھا۔ نور بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ زاویار کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ زاویار کمرے میں آیا تھا۔ وہ نور کے قریب آیا تھا اور اسے سیدھا بیڈ پر لٹایا تھا۔ زاویار، نور نے ذرا سی آنکھیں کھولتے کہا تھا، سو جاؤ لٹل اینجل۔ زاویار کہاں تھے آپ؟ زاویار اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹا تھا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ سو جاؤ لٹل اینجل، رات ہو گئی ہے، پھر تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی نا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ زاویار نے شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور آنکھیں موند گیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کیا پلان ہے ارش؟ زوہان نے پوچھا تھا۔ بہت مست پلان ہے، اس نے ناشتہ کرتے کہا تھا، لیکن بتا تو اپنے پر دھیان دے اور آج سے میں اپنے پر۔ لیکن میرے ساتھ کون ہوگا پھر؟ زوہان نے کہا تھا۔ کیوں، تو ننھا منھا بچہ ہے کیا جو تجھ سے میرے بغیر نہیں ہو پائے گا؟ کر لے خود۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بھی اب اپنے پلان کو آگے تک لے کر جاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے نا، لے جا، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں، سب اپنے اپنے کام پر لگ جاؤ، پینتھر نے سب سے کہا تھا۔ جی بھائی۔ آپ سب کا پولیس اسٹیشن کہاں ہے؟ کیا وہاں سب سے بڑے آپ سب ہیں؟ نور نے پوچھا تھا، جس پر سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اب سب کی نظریں زاویار پر تھیں کہ وہ کیا کہے گا۔ زاویار کیا ہمیں بھی دکھائیں گے؟ وہاں لڑکیاں بھی تو ہوتی ہیں نا؟ اس نے ایک ساتھ سارے سوال پوچھ ڈالے تھے اور اب زاویار بری طرح پھنس چکا تھا۔ زاویار نے اپنی کونی ٹیبل پر ٹکائے ہاتھ اپنے چہرے کے ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ بتائیں نا زاویار، نور نے پھر سے پوچھا تھا۔ نور، وہ ہم سب نے پولیس کی جاب چھوڑ دی۔ زاویار نے بتاتے ہوئے اسے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن کیوں چھوڑ دی زاویار؟ نور نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ابھی تو ہم نے آپ کو یونیفارم میں بھی نہیں دیکھا تھا، نور نے معصومیت سے کہا تھا۔ زاویار کیوں چھوڑی؟ بتائیں نا۔ اب کیا ہی بتائیں، ہم پولیس نہیں بلکہ سارے ملکوں کی پولیس ہمارے پیچھے ہے، ارمغان بڑبڑایا تھا۔ ارے بھابھی، آئی کین ایکسپلین، میں بتاتا ہوں آپ کو، ارش نے کہا تھا۔ بتائیں بھائی۔ زاویار نے اس کو گور کر دیکھا تھا کہ کہیں وہ کوئی نیا شوشہ نہ چھوڑ دے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارا بزنس ہے۔ جی بتایا تھا، تو ہمارا بزنس اب بہت بڑا ہو چکا ہے، تو اسے بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ اگر ٹائم نہ دیا تو لاس ہو سکتا ہے نا، اور ہم میں سے سب سے زیادہ بھائی بزنس کے بارے میں جانتے ہیں، اس لیے۔ لیکن آپ آدھا دن بھی تو کر سکتے تھے نا، مطلب آدھا دن ایک جگہ آدھا دن دوسری جگہ، نور نے کہا تھا۔ زاویار نے نفی میں سر ہلایا تھا کہ آج اس کی بیوی کچھ زیادہ ہی سمجھداری والی باتیں کر رہی ہے۔ بتائیں نا زاویار جان، وہ مشکل ہو جاتا ہے نا، اسی لیے سمجھا کرو، تم تو میری پیاری سی لٹل اینجل ہو۔ زاویار نے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے شرماتے ہوئے نظریں چکائی تھی۔ زاویار، اب تو میری لٹل اینجل کو پتہ چل گیا نا کہ کیوں کیا میں نے ایسا؟ زاویار نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ مزید نظریں چکا گئی تھی۔ واہ، کیا ٹیلنٹ ہے بھائی میں، مطلب پوری بازی ہی پلٹ دی، ویری گڈ، اب میں بھی بھائی سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ارش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی نے پیار کا جادو چلایا ہے، زوہان نے کہا تھا۔ ہاں نا، اور ہماری معصوم بھابھی جو بھائی سے اتنا شرماتی ہیں کہ اپنا سوال تک بھول جاتی ہیں، ارش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، اور اب میں جا رہا ہوں، زوہان نے کہا تھا۔ اور میں بھی آ رہا ہوں، ارش بھی اس کے ساتھ نکلا تھا۔ صبح کا تازہ پہر تھا، سورج کی کرنیں سنہری روشنی بکھیر رہی تھی اور ہلکی سی خنکی فضا میں کھلی ہوئی تھی۔ سڑکوں پر معمول کی رونق تھی، مگر یونیورسٹی کے باہر ایک الگ ہی ہلچل تھی۔ گاڑیاں رک رہی تھیں، کچھ طلبہ پیدل اندر جا رہے تھے تو کچھ اپنی مہنگی گاڑیوں سے اتریں، تو ایسے جیسے زمین پر قدم رکھنا بھی کسی احسان سے کم نہ ہو۔ اسی رش کے درمیان ایک سیاہ رنگ کی لگژری کار آہستہ رفتار میں چلتی یونیورسٹی کے سامنے سے گزری۔
ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स कोई आम इंसान नहीं था, वो था अर्श, वही लापरवाह, बेफिक्र और खतरनाक मुस्कुराहट वाला अर्श। उसकी आंखों पर स्याह चश्मा चढ़ा था। गाड़ी की रफ्तार मजीद धीमी हुई जब उसकी नज़र यूनिवर्सिटी के मेन गेट के करीब लड़कियों में से खड़ी एक मखसूस लड़की पर पड़ी। सफ़ेद मर्सिडीज के पास खड़ी वो लड़की, जो शायद अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी, मगर अंदाज ऐसा जैसे पूरा माहौल उसके गिर्द घूम रहा हो। नेवी ब्लू रंग का डिज़ाइनर सूट, सुनहरी हील्स और हाथ में पकड़ा एक महंगा ब्रांडेड बैग, हर चीज़ उसकी इमारत की गवाही दे रही थी। अर्श ने एक लम्हे को चश्मा थोड़ा नीचे सरकाया, सीटी बजाई और अपनी मखसूस शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, हेलो मूनलाइट। लड़की जो अपनी दोस्त से कुछ कह रही थी चौंक कर पलटी। उसकी भूरी आंखें लम्हा भर के लिए हैरानी से सिकुड़ी, फिर फौरन तेवर सख्त हुए। उसने नजरें सुकेड़ कर अर्श को देखा, लेकिन अर्श के चेहरे पर लापरवाही के सिवा कुछ न था। लड़की ने भवें चढ़ा कर कहा, एक्सक्यूज मी, जैसे यकीन न आ रहा हो कि किसी की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह मुखातिब करने की। अर्श ने जरा सा झुककर गाड़ी के दरवाजे पर कोहनी टिकाई और हंसते हुए बोला, बस यूं ही कहा, देख के लगा तुम्हारे आसपास लोग हैं, लेकिन तख्त पर बैठने वाली और चांद की चमक रखने वाली तुम ही हो। लड़की के होंठ सख्ती से भींच गए, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर रुख मोड़ने लगी। अर्श ने मुस्कुराकर सर झटका और गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर जाते जाते रेयर व्यू मिरर में देखा, लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, मगर उसका ध्यान अब उसकी दोस्त पर नहीं बल्कि उस गाड़ी पर था जो अभी कुछ लम्हे पहले वहां रुकी थी। अर्श ने खुद से हल्की आवाज में कहा, चलो मूनलाइट की दुनिया में थोड़ी हलचल तो मचाई। फिर रफ्तार बढ़ाई और कार सड़क के रश में कहीं गुम हो गई। सुबह की रोशनी सड़कों पर फैल चुकी थी और शहर अपनी मसरूफियात से जाग चुका था। दनीन अपनी गाड़ी में बैठी ऑफिस जा रही थी। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे। ट्रैफिक सिग्नल पर जैसे ही रेड लाइट हुई, उसने गाड़ी रोकी और एक नज़र घड़ी पर डाली। उसी लम्हे बराबर वाली लेन में एक स्याह रंग की लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। दनीन ने बेख्तियार एक नज़र डाली और फिर फौरन नजरें हटा ली, मगर दूसरे शख्स ने ऐसा नहीं किया। जोहान जो लापरवाही से अपनी उंगलियां स्टीयरिंग पर बजा रहा था, अचानक दिलचस्पी से सीधा हुआ। उसने सनग्लासेस उतार कर एक उचटती नजर बराबर वाली गाड़ी पर डाली और एक लम्हे के लिए रुका। तो किस्मत वाकई मुझे दोबारा तुम्हारे रास्ते पर ले आई, वो खुद से बोला। फिर गाड़ी की खिड़की थोड़ी नीचे सरकाई। हेलो प्रिंसेस। जोहान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले से ही ये बात कहने का इंतजार कर रहा हो। दनीन जो अपने फोन की स्क्रीन पर कुछ चेक कर रही थी, उस आवाज पर चौंकी। उसने एक नज़र जोहान पर डाली और फिर बेनियाजी से बोली, ओ मिस्टर, कौन प्रिंसेस? मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। जोहान ने दिलचस्पी से सर झुकाया, जैसे वाकई गौर कर रहा हो। फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हो सकता है, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि कुछ लोग चाहें जितना भी इनकार करें, उनके अंदाज ही बता देते हैं कि वो खास हैं। दनीन ने हल्की सी सांस ली और सीधा होकर बैठी। तुम हमेशा इतनी फजूल बातें करते हो या आज खास तौर पर वक्त ज़ाया करने आए हो? जोहान ने हंसते हुए स्टीयरिंग पर उंगली बजाई। मैं तो बस सिग्नल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शुक्र है इस दौरान एक दिलचस्प मुकालमा भी हो गया। दनीन ने बेनियाजी से शीशे के पार देखा, जैसे वो मज़ीद बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। खैर, तुम मुझे देखकर हैरान नहीं हुई? आखिर 2 बार पहले भी तो हमारी टक्कर हो चुकी है, जोहान ने शरारत से कहा। दनीन ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी का गियर बदला, क्योंकि सिग्नल ग्रीन हो चुका था। मुझे अपने रास्ते में आने वालों के चेहरे याद रखने की आदत नहीं है, ये कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जोहान ने हल्की सी सीटी बजाई और गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया, जैसे वाकई ये बात सुनकर मज़ा आया हो। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प, वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला और दनीन की गाड़ी के पीछे गाड़ी दौड़ा दी।
ज़ुहान ने गाड़ी आगे बढ़ाई मगर रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं की। वो दनीन की गाड़ी को देख रहा था जैसे किसी दिलचस्प चीज़ का मुशाहिदा कर रहा हो। दनीन ने एक नज़र रेयर व्यू मिरर में देखा और ज़ुहान की गाड़ी को अपने पीछे आते देखकर बेनियाजी से नजरें हटा ली। वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाली लड़की थी। किसी की गैर ज़रूरी तवज्जो उसे मुतासर नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में वो एक बड़े कारपोरेट बिल्डिंग के सामने पहुंची जहां उसका ऑफिस था। जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की और दरवाज़ा खोला, ज़ुहान की गाड़ी भी चंद फुट के फासले पर रुक गई। दनीन ने दरवाज़ा बंद किया और बैग कंधे पर डालकर अंदर जाने लगी मगर ज़ुहान गाड़ी से उतरकर आराम से उसकी तरफ बढ़ा। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चल रहा था जैसे यहाँ आना एक आम इत्तेफाक हो। कितनी मसरूफ जिंदगी है तुम्हारी प्रिंसेस। ज़ुहान की आवाज़ दनीन के कदमों को लम्हा भर के लिए रोक गई। पहली बात, मुझे प्रिंसेस कहना बंद करो, और दूसरी बात, तुम यहाँ क्यों आए हो? दनीन ने सर्द लहजे में कहा। ज़ुहान ने कंधे झुकाए और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, दिलचस्प सवाल है लेकिन शायद इसका जवाब तुम्हें ज़्यादा पसंद ना आए। दनीन ने एक नज़र ज़ुहान की तरफ डाली और सवालिया नज़रों से देखा। ज़ुहान ने अपने सनग्लासेस जेब में डाले और संजीदगी से बोला, इत्तफाकात पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता, लेकिन लगता है कि हमारी राहें बार बार टकराने वाली हैं। दनीन ने एक गहरी सांस ली और बेजारी से कहा, ये राहें जितनी जल्दी अलग हो जाएं उतना बेहतर है। ज़ुहान ने अनसी दबाते हुए सर हिलाया। हो सकता है, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं दनीन। दनीन ने ज़ुहान की आंखों में आंखें गाड़ी। और मैं ऐसे खेलों में नहीं आती मिस्टर। ज़ुहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। और मुझे ऐसे खेल बहुत पसंद है प्रिंसेस। दनीन ने गहरी नज़रों से उसे देखा जैसे वो अंदाज़ा लगा रही हो कि ये आदमी आखिर चाहता क्या है। फिर उसने सर झटक कर बेनियाजी से कंधे उचकाए। तो मैं क्या करूं? और आइंदा से मेरे सामने मत आना, वो कहकर अंदर को बढ़ गई। ज़ुहान ने उसे जाते देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चेहरे लब बोला, अब तो मुलाकात होती रहेगी प्रिंसेस। अर्श और ज़ुहान दोनों इकट्ठे ऑफिस पहुंचे थे। तूने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया? ज़ुहान ने अर्श से पूछा था। हाँ, कर दिया। तो क्या बना फिर? अभी तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, बहुत जल्द मुकम्मल करूँगा उसे, अर्श ने कहा था। मेरा भी प्रोजेक्ट जल्दी होगा मुकम्मल, ज़ुहान ने कहा था। जल्दी से हो ही जाए अब। पैंथर अपनी बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल पर मौजूद था। शीशे की दीवारों के पार नीचे फैला शहर उसके लिए जैसे एक शतरंज के मैदान से कम नहीं था। हर कोई एक मोहरा और वो खुद उस खेल का बेरहम खिलाड़ी। पैंथर ने सिगरेट जलाया और गहरा कश लेकर आंखें मूंद ली जैसे अपने ज़हन में पूरा खेल तरतीब दे रहा हो। फिर उसने फ़ोन उठाया और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से फ़ौरन कॉल उठाई गई। जी सर। माफिया लेडी, ऐसे करो कि ये लीड किसी तरीके से पुलिस वाले तक पहुंचाओ, और हाँ, अरमकान को भी साथ रखना। ज़ावियार ने उसे प्लान बताया था। जी सर, काम हो जाएगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पता है सर, और मेरे काम में गलती नहीं होती। गुड, अब काम पर लगो। पैंथर ने फ़ोन काटा था। अब ज़रा अपनी जान से भी बात कर लूँ, काम तो ये लोग कर ही लेंगे। ज़ावियार ने नूर को फ़ोन किया था। नूर ने थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाया था। लिटिल एंजल, इतनी देर से क्यों फ़ोन उठाया? वो हम किचन में थे और फ़ोन बाहर पड़ा था इसलिए। तो फ़ोन अपने पास रखा करो ना लिटिल एंजल, पता तो है तुम्हें, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। आप ना बहुत बेशर्म हैं। अभी तो मैंने कोई बात ही नहीं की बेशर्मी की लिटिल एंजल। ज़ावियार, अच्छा ये बताओ, मेरी जान किचन में क्या कर रही थी? वो हम कुछ खाने के लिए बना रहे थे। अच्छा चलो, अब जल्दी से आई लव यू बोलो ताकि मैं काम कर सकूं। क्या? लिटिल एंजल, ये काम बहुत आसान है, किस करने को नहीं कहा। चलो जल्दी से बोलो। ज़ावियार, मुझे कुछ हो रहा है। लिटिल एंजल, जल्दी करो, ज़ावियार ने एक्टिंग करते कहा था। ज़ावियार, क्या हो रहा है आपको? नूर ने फिक्रमंदी से पूछा था। नूर, जल्दी से बोल दो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। ज़ावियार, बताएं ना क्या हो रहा है। नूर अब रोने वाली हुई थी। नूर, जल्दी बोलो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा।
जावियार, नूर बोल दो। जावियार आई लव यू, ठीक हो जाए ना प्लीज। जावियार को उसकी लड़खड़ाई आवाज सुनाई दी थी। नूर, लिटिल एंजल, मैं ठीक हूँ, खबरदार जो एक आंसू भी आया तुम्हारी आंख में, मजाक कर रहा था। जावियार उसकी आवाज सुनकर परेशान हुआ था। आप बताएं ना, आप ठीक हैं? उसकी आंखों में नमी थी। श्श, ठीक हूँ मैं, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आप पक्का ठीक हैं? नूर, चुप करो, रोना मत, अगर एक आंसू भी लाया ना तो देखना तुम, समझी? जावियार ने सख्ती से कहा था। वैसे भी काम तो उसने सबको बता दिया था, खुद अब उसने अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।